वेबिनार का आयोजन हो सका। और अब मैं तुषिता मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। Participants, this is Mukesh Kumar, follower in IIT. In few minutes, Tushita ma'am will present a session on Python software and some instruction that already Abhishek sir has told you. It's good to close your headphone and that mic and also the video. And I suppose that you are from different branches like mechanical, civil engineering, chemical, electrical, and computer science. For that, we will conduct a session based on Python that helps all of you, since you know in current scenario the jobs and the demand of jobs and the industry generally looks for the students that knows their code branches as well as their coding, a coding language. So we have think that a session, a webinar based on Python that help you, all of you. It's not depends on that what is your core branch. It's not doesn't depend. So it's good for you that you should participate this session and try to replicate that Python software. In this session, we will teach you how to install Python software. There is a Python software known as Anaconda, which contains all the library of mathematics to how to plot a graph or how to solve a physical problem like diffusion through a solid or a gas or any type of thermal problem. We can do the analysis in Python, and it's very good tool. Generally, industries demand for this tool. The jobs are very less in the code branches, so everybody wants that you should have a code branch knowledge as well as the coding, a high level programming language. So it's better to learn this session. It will helps all of you. So let's try to call Miss Tushita Rohila. Will present the rest session. हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है अब? यस मैम, प्रोसीड करें आप। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, गुड मॉर्निंग राहुल सर, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर. Hello friends, I am Tushita Rohila. I am a PhD scholar at IIT Ropar in the Mechanical Engineering department. So today I'll be giving a brief introduction to Python programming. I hope it's a good learning session for you all. And firstly, yes. So firstly, we'll see the outline what we'll learn during this in this webinar. So we'll learn about Python, how to get started with it, what are the various libraries and packages, and some basics of Python, like what are the various data types, what are the various functions, and how to ओके. सो हम अलग अलग पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे. फिर फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस कैसे यूज करते हैं पाइथन में, हम उसके बारे में जानेंगे. अलग अलग टाइप के लूप्स कैसे हम लगा सकते हैं. तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी बहुत ही. इसके लिए आपको पाइथन की पहले कोई नॉलेज, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी आप पाइथन से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ एडवांस नहीं है, इतना सारा बेसिक है. और फिर रीडिंग और राइटिंग फाइल्स, पाइथन में फाइल्स को कैसे कॉल कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं फाइल्स पाइथन से, ये हम देखेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज देखेंगे जैसे नमपाई, स्काईपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सब. और फिर फाइनली हम एक प्रोग्राम लिखकर देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन. पाइथन है क्या? और ये एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ये
फ्री और ओपन सोर्स है ये। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे मैटलैब है वो लाइसेंस्ड होती है, उसके लिए आपको एक कंपनी को पे करना पड़ता है तब वो आपको लाइसेंस मिलता है। पर पाइथन एक ओपन सोर्स है और ये इजी है और कॉम्पैक्ट है, मतलब इसका सिंटैक्स ऐसा है जैसे इंग्लिश जैसा ही, मतलब इंग्लिश से मिलता जुलता है, तो ये जल्दी से समझ आ जाती है और जल्दी से सीखी जा सकती है। तो इसके एप्लीकेशंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, रिसर्च में ये बहुत यूज होती है पाइथन, क्योंकि बहुत सारे जो भी रिसर्च के टूल्स हैं वो सब इंटीग्रेटेड हैं पाइथन से। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर भी बहुत इसकी एप्लीकेशन बढ़ गई है, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, तो उसकी प्रोग्रामिंग भी पाइथन में बहुत इजी है। अगर आप मशीन लर्निंग भी आगे सीखना चाहते हैं तो बेसिक पाइथन के बाद मशीन लर्निंग आप इजीली सीख सकते हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो भी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो भी एनालिसिस होता है रिसर्च लैब्स में, तो वो भी पाइथन की ही मदद से होता है। तो आप देखेंगे इस चार्ट से कि इसकी पॉपुलैरिटी, मतलब इट्स जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका शेयर 26 ऑलमोस्ट 26% है। तो यस, आप डाउट पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ सेशन। तो और इसके अभी 2 टाइप हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3। पाइथन 3 सबसे लेटेस्ट है और जनवरी 2020 से पाइथन 2 थोड़ा डिसकंटिन्यू ही कर दिया है कंपनी ने भी, कि अब पाइथन 3 पर ही सारा मतलब सारे जो पाइथन से जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो पाइथन 3 के अकॉर्डिंग ही अब प्रोग्रामिंग करते हैं और सपोर्ट पाइथन 3 का ज्यादा है। तो इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे इसमें टैब्स के लिए कुछ, मतलब इसमें चेंजेस हैं, पाइथन 2 से ये बेटर है। तो ये और हमें पाइथन सीखने क्यों चाहिए? पाइथन क्योंकि आप देखेंगे कि एक पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जिससे कि आपको मतलब आप हमेशा इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट रहेंगे। आपको मतलब जैसे आगे कहते हैं कि रिसेशन भी आ सकता है कुछ भी, पर सॉफ्टवेयर फील्ड में पाइथन एवर ग्रोइंग है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे पाइथन में तो इससे आपको आगे एक अच्छी जॉब सिक्योर हो सकती है। तो इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखिए और आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए इसका। तो हम बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पाइथन का। या तो गेटिंग स्टार्टेड, हम पाइथन से पर स्टार्ट कैसे हों, हम कैसे क्या करें? तो इसके 2 मेथड्स हैं, या तो आप पाइथन को अलग से इंस्टॉल करिए, फिर उसके जो भी तो हाँ जी, पाइथन के को इंस्टॉल हम कैसे कर सकते हैं? एक ये तीन स्टेप का प्रोसेस है कि हम एक अलग से पाइथन को इंस्टॉल करें, जो भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए, हम फिर एक बार पाइथन इंस्टॉल हो गई उसमें हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें, और फिर हमें कोड एडिटर या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE जिसको कहते हैं, कि हम जहाँ अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं हम उसको अलग से करें। पर इससे भी एक इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करें। एनाकोंडा एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पैकेज है पूरा जिसमें पाइथन 3 पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है और लगभग 400 to 450 लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और कोड एडिटर्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो लेटेस्ट कोड एडिटर जो मतलब सबसे जो फील्ड में सबसे अच्छे कोड एडिटर्स हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो आपसे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उसका एक वीडियो आपसे पहले से शेयर हो चुका है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। हेलो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो जुपिटर हैं, स्पाइडर, ये दोनों कोड एडिटर्स हैं। फिर नमपाई, स्काईपाई, पैंडाज, ये सब उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं और ये आपको बहुत काम आएंगे। तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है पाइथन में स्टार्ट होने का। तो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं जो एनाकोंडा नेविगेटर, तो इस तरह की विंडो आपको अपीयर होती है। तो उसमें ये जुपिटर और स्पाइडर 2 कोड एडिटर्स हैं। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको लॉन्च करेंगे, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे तो वो ब्राउजर में खुलेगा, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में
इसकी विंडो खुल जाएगी, वहां आप ऐसी इसकी विंडो होती है। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग सेल बने हुए हैं। तो ये इसलिए है कि जुपिटर नोटबुक इंटरेक्टिव पाइथन मतलब आई पाइथन पे बेस्ड है। आई पाइथन एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होता है कि कोड को हम इंटरेक्टिव बनाते हैं कि आप 4 लाइन का कोड लिखें सपोज एक सेल में, उसको आप इस रन कमांड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तुरंत आपको उसका रिजल्ट इस सेल के नीचे दिख जाएगा, चाहे वो प्लॉट होगा, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ भी आंसर होगा वो आपको तुरंत ही दिख जाएगा। तो आप उसको डीबग अच्छी तरह कर सकते हैं। और जो पाइथन सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ कोड रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर एक का मतलब मिस्टेक्स फाइंड जल्दी हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस इसमें जुपिटर नोटबुक में बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर भी एक कोड एडिटर है पाइथन का। इसमें 3 टाइप के कंसोल हैं। एक तो ट्रेडिशनल पाइथन के लिए जिसमें .py, अगर आपने पूरा कोड लिख दिया है, अब आप उसको पूरे को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो शायद हजारों लाइन का कोड हो, तो ये .py फाइल उसमें आप इस कंसोल में खोलकर इसको रन कर सकते हैं। फिर यहाँ ये है आई पाइथन, जो हमारे जुपिटर वाला जो आई पाइथन वाला कॉन्सेप्ट है इंटरेक्टिव पाइथन, उसके भी सेल टाइप का स्ट्रक्चर भी इस एक ही जगह पे इसी विंडो में आ जाता है एक कंसोल के रूप में। और हाँ, मैटलैब की तरह वेरिएबल एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर वाला कंसोल भी है। तो वेरिएबल एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं कई बार वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 10-15 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं वेरिएबल एक कोड में। तो वेरिएबल्स को देखना होता है कि उनका डेटा टाइप क्या है, उनकी वैल्यू उसमें क्या क्या स्टोर्ड है, तो आप वेरिएबल एक्सप्लोरर से देख सकते हैं। और सपोज फाइल्स में आप बहुत काम कर रहे हैं तो फाइल एक्सप्लोरर भी यहाँ है। तो ये थोड़ा मैटलैब जैसा कॉन्सेप्ट है। तो ये स्पाइडर भी कईयों को सूटेबल लगेगा कि ये आप इसमें एक बिग पिक्चर अपने कोड की। तो देन वी कम टू द पाइथन लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस। पैकेज कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी लिख सकता है। सपोज आपका कुछ ऐसा एक क्वेरी आई है एग्जाम्पल के लिए, तो यस, स्पाइडर बस आपको इंट्रोड्यूस करा कि ये एक कोड एडिटर है। स्पाइडर मतलब हम कोड के जो एग्जाम्पल आगे देखेंगे वो हमने जुपिटर में लिख रखे हैं, और स्पाइडर में ये जैसे आप देख सकते हैं कि कोड लिखा हुआ है, ये इसमें अलग अलग फंक्शंस हमने डिक्लेयर कर रखे हैं। तो इसको रन करवाने कर भी हम देख सकते हैं। अभी इस वेबिनार के स्कोप में स्पाइडर का ज्यादा नहीं है, हमने जुपिटर बेस्ड बनाया है। तो अगर आपकी क्वेरी नोट कर लिए, आप बाद में हमें बता सकते हैं अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो स्पाइडर वाले। तो ओके, तो डाउट थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो पाइथन लाइब्रेरीज और पैकेजेस, तो कुछ फंक्शंस, कुछ ऐसे जो बहुत कॉमन है, जो नोन है सारे मैथमेटिकल फंक्शंस, उन सबको हमने मतलब कुछ लाइब्रेरीज में डिवाइड कर दिया है। तो वो कुछ ये लाइब्रेरीज के नाम हैं जिनमें कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेशंस और फंक्शंस हैं जो जिनका आप सिर्फ नाम लिखेंगे अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो नमपाई एक बड़ी लाइब्रेरी है, स्काईपाई एक बड़ी लाइब्रेरी है। नमपाई से डेटा को, आप न्यूमेरिकल डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स की फॉर्म में, मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो नमपाई ऑलमोस्ट आपको हमेशा चाहिए होगा जब भी आप कुछ कोड लिखेंगे। और स्काईपाई कुछ आपने कंप्यूटेशन करना है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, जैसे उसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज हो रहे हैं, तो आपको स्काईपाई चाहिए होगा। अभी हम इन सबको डिटेल, इन नमपाई, स्काईपाई और मैटप्लॉटलिब को डिटेल में देखेंगे इस वेबिनार में। और दूसरी लाइब्रेरीज का बस ये मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि जैसे मैटप्लॉटलिब है, प्लॉटिंग की, आपको अपने रिजल्ट प्लॉट करने होंगे तो मैटप्लॉटलिब आपको चाहिए होगी ये लाइब्रेरी। तो और सिम्पाई में है कि अगर आपको कुछ ग्रीक जैसे लैम्डा
और ईटा, ये सब यूज करने हैं। कुछ सिंबल्स यूज करने हैं, तो मैथमेटिकल सिंबल्स, तो सिम्पाई को हम कॉल करते हैं। ऐसे ही मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में कुछ लाइब्रेरीज जो बहुत यूजफुल हैं, बड़ी बड़ी मतलब जहाँ भी मशीन लर्निंग का काम आता है वहाँ ये लाइब्रेरीज यूज होती हैं। पैंडास, पैंडास से हम जैसे हजारों कॉलम्स का और रोज का कोई डेटा है और उसको हम मतलब कितना भी बड़ा डेटा है उसको डेटा फ्रेम में हम इंपोर्ट कर सकते हैं पैंडास की मदद से, और उस पर अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं बड़े से बड़े डेटा सेट पे। और फिर उसके ऊपर मशीन लर्निंग हम स्काईकिट लर्न के हेल्प से चला सकते हैं। इसमें अलग अलग मॉडल्स हम बना सकते हैं जो कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं उस डेटा सेट के बेस पे। ऐसे ही केरास और टेंसर फ्लो से हम उस डेटा सेट से न्यूरल नेटवर्क्स जनरेट कर सकते हैं जो कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं। हाँ, इस वेबिनार में सिर्फ नमपाई, स्काईपाई और मैटप्लॉटलिब पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, तो नमपाई सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शंस बने हुए हैं और डेटा पे मतलब इसको मतलब एक उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिससे कि वो फास्टर प्रोसेस हो सके, उस पे फंक्शंस हम लिख सकें। तो ऐसे इसमें कुछ ऑपरेशंस बने हुए हैं। तो नमपाई लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसमें एरेज और मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें मतलब जब भी हम डेटा को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, चाहे वो एक ही डेटा पॉइंट है या कितने ही हजारों डेटा पॉइंट हैं, तो वो उससे उसकी प्रोसेसिंग फास्टर हो जाती है, बहुत फास्ट वो काम करता है rather than any other मतलब उसको रिप्रेजेंट करना किसी और वे में। तो कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जो एरेज पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लिनस्पेस, इसका बहुत यूज आएगा। लिनस्पेस आप बहुत सुनेंगे। ए मैक्स, आर्गमैक्स, वंस, जीरोस, ये सारे ऐसे मीन मतलब किसी डेटा का मीन फाइंड करना, किसी डेटा का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ये सब प्री इंस्टॉल्ड इसमें फंक्शंस बने हुए हैं, डिफाइंड हैं। तो आपका कोई एरे आपने डिफाइन किया, उसमें आपको सपोज उसका मीन फाइंड करना है, तो आपको बस एक लाइन लिखनी है, एक वर्ड लिखना है बस कि इस वेरिएबल में ये स्टोर्ड है एरे, और सपोज 100 पॉइंट्स हैं उसमें, तो उसका बस वेरिएबल डॉट मीन लिखना है, उसका मीन आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो ये इसमें नमपाई में ही सारे पाइथन के बेसिक हम बता सकते हैं कि जो भी मतलब सारे लाइब्रेरीज में ऐसे ही बेसिक हैं। तो नमपाई के में हम पाइथन के बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक से हम मानते हैं कि डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट्स, जैसे कि दो टाइप के हम ऐसे डेटा टाइप जब कहते हैं तो इससे दो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एक तो डेटा टाइप ऐसा हुआ कि फ्लोट होगा डेटा, या इंटीजर होगा, या स्ट्रिंग होगा, या बुलियन होगा। फ्लोट मतलब कि उसमें डेसिमल वैल्यू होगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है। इंटीजर मतलब उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होगी पर नेगेटिव ये सब भी हो सकता है। और स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड होगा, अल्फाबेट होगा, और बुलियन ट्रू फॉल्स इस फॉर्म में होगा। और दूसरा डेटा टाइप्स का मीनिंग है कि वो एरेज की फॉर्म में होगा या लिस्ट की फॉर्म में होगा। तो इसका हम डिफरेंस आगे देखते हैं कि एरेज और लिस्ट कैसे डिफरेंट हैं, उनको डिफाइन भी हम अलग अलग तरीके से ही करते हैं। तो उसके बाद हम लाइब्रेरीज भी देखेंगे। बेसिक में नमपाई, मैथ और स्काईपाई। स्काईपाई और नमपाई में बहुत ओवरलैप है। स्काईपाई में नमपाई इंक्लूडेड आता है, तो इसलिए इनमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। मतलब स्काईपाई में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं नमपाई के साथ साथ, तो इसलिए मैंने इनको साथ ही लिख दिया है कि ये भी बेसिक में है। और फंक्शंस हम देखेंगे कि लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं और नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। फिर लूपिंग एंड नेस्टिंग हम देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप और इफ एल्स ब्लॉक्स कैसे यूज करते हैं। और फिर फाइनली रिजल्ट्स को प्लॉट करना, कैसे हम प्लॉट करते हैं, और रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, एक्सटर्नल फाइल्स को कैसे हम रीड या राइट करते हैं, और फिर एक प्रोग्राम लिखना। तो ये बेसिक में रहेगा। नेक्स्ट प्लीज मुकेश। फिर
अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे पाइथन में डिक्लेयर होते हैं। ये अलग अलग इसलिए लिख दिया, आप कॉमा से थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया है। आप देखिए कि अगर ये मतलब इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर डिफाइन हम ठीक नहीं कर रहे हैं अपना वेरिएबल तो एरर आ सकता है। तो इसलिए आपको देखना होगा कि इंटीजर, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग्स ये सब कैसे डिफाइन होते हैं पाइथन में। ये वैसे ज्यादा अलग नहीं है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बस एक बताना है कि कॉम्प्लेक्स जैसे अगर आपको नंबर डिक्लेयर करना है तो इस तरह डिक्लेयर किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं एरेज और लिस्ट पर। एरे अगर आपको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, तो वो कैसे होगा, ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस जिसको कहते हैं, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको एरे ट्रीट करेगा पाइथन। अगर आपने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया तो वो उसको लिस्ट ट्रीट करेगा। तो लिस्ट और एरे एक, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, हम आगे समझेंगे कि लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, और आप फिर देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के लिए लिस्ट बेटर है या एरे बेटर है। जैसे कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप की एप्लीकेशन है, उसमें एरे ज्यादा यूज होते हैं, लिस्ट कम यूज होते हैं। तो हम पहले लिस्ट को देख लेते हैं। तो लिस्ट में एक्चुअली हेट्रोजीनियस हो सकता है सब कुछ की। प्रीवियस स्लाइड करना मुकेश। हाँ, तो लिस्ट में क्या है कि ये जैसे 1 2 3 4 हैं, ये इनके कुछ भी डेटा टाइप हो सकते हैं, एक इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, तो उसको वो लिस्ट प्रोसेस कर लेगा। पर एरे में ये होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब या तो वो सारे इंटीजर होंगे, या वो सारे फ्लोट होंगे, या वो सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसा। तो एरे इस तरह काम करता है। नेक्स्ट पेज। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज आपने कोई अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें उसकी आपको लेंथ पता करनी है, तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। ये एक्स आपका वेरिएबल है जिसमें वो लिस्ट स्टोर्ड है, तो उसमें आप कुछ अपेंड कर सकते हैं, मतलब एट द एंड जहां वो वेरिएबल खत्म हो रहा है उसके बाद आप ये कमांड देकर दूसरा वेरिएबल की वैल्यू उसमें अपेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे ही एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप लिस्ट के कंटेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू दूसरा एक वेरिएबल जिसमें लिस्ट स्टोर्ड है उस कंटेंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी किसी भी लोकेशन पे उस लिस्ट में कोई भी आपने वैल्यू ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार एक पर्टिकुलर आइटम एक लिस्ट में आ रहा है, कितना काउंट है उसका। सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि ये सब कैपेबिलिटीज हैं पाइथन की अगर आप लिस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये यही नहीं और भी हैं। आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको अभी सपोज रिवर्स करना है या कुछ इसकी मैक्सिमम इस लिस्ट में से कुछ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये सारे कमांड्स एक एक वर्ड के कमांड हैं। पाइथन ने इजी बना रखा है बहुत। तो आपको कोई इसके लिए प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, कोई फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। फिर मैक्स, मिन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ आइटम्स लिस्ट से। तो ये लिस्ट का ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट। तो फिर अब आते हैं हम लिस्ट और एरेज के डिफरेंस पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी थोड़ा सा बताया कि लिस्ट और एरेज में क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि एक लिस्ट 1 में ये वैल्यूज हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट से ये डिक्लेयर करा है। लिस्ट 2 में ये वैल्यूज हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट से एक लिस्ट डिक्लेयर करी है। पाइथन इसको लिस्ट की तरह ही पढ़ेगा क्योंकि सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो फिर हमने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट को प्रिंट करवा दो, तो उसने सीधा एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि लिस्ट में हेट्रोजीनियस होता है, उसने इसको लिस्ट की तरह रीड करा। तो अगर हम इसको एरे की तरह डिक्लेयर करें, जैसे कि हमने फिर A1 को एक एरे बना दिया लिस्ट 1 का, इसको हमने पेरेंथेसिस में प्लेस कर दिया। ऐसे ही A2 को हमने एक लिस्ट 2 का एरे बना दिया। फिर इनका प्रोडक्ट हमने इसको प्रिंट करवाने को बोला तो इसने प्रिंट